TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि इस वक्त हम वायरस के इब्तदाई और ख़तरनाक मरहले का सामना कर रहे हैं। यह पहला और बदतरीन मरहला होगा जिसका सामना हम एक मुल्क की हैसियत से करेंगे। What we are in right now is the first phase of the spread of the virus. This is the phase that runs to a certain extent unchecked or difficultly checked through our society, through our communities. We're seeing new cases pop up here and there. We're seeing people struggle to handle it and to keep these measures from overwhelming our healthcare system. If we do things right, this will be the first and worst phase that we go through as a country in terms of COVID-19. कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि कुछ शोबों में नरमी करने का सोच रहे हैं ताकि लोगों को दोबारा काम पर आने की इजाजत दी जा सके। उनका कहना था कि प्रोजेक्शन की बुनियाद पर कोरोना से मुतालिक पाबंदियों को गर्मी तक बरकरार रखने का सोच रहे हैं, बशर्ते कि लोग कवायद की पासदारी करें। According to the models we've put forward, it is possible that we will be able to be out of that wave this summer. And at that point, we will be able to talk about loosening up some of the rules that are in place, looking at particular sectors where people can go back to work, bringing in new rules around how people can interact with each other in society and get things rolling again. We'll have to be very careful about how we do that, and we will have to remain vigilant and active every single day for possible resurgences of the virus. जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि अमेरिका के मुकाबले में हमने मजमूई तौर पर ज्यादा टेस्ट किए हैं। उनका कहना था कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कनाडा के पास बेहतरीन टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और नई टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। We are continually ramping up our testing. We started earlier than other countries in terms of intensifying our testing programs. Certain jurisdictions are doing extraordinarily well on testing, like Alberta and British Columbia. Quebec is coming a long way very quickly, and Ontario is addressing some of the challenges that they've faced over the coming days. We know there is more to do, but we can certainly know that the lead that we've taken on testing is part of why we are seeing a flatter curve than other places. We've done significantly more tests in total than the United States has, and they're 10 times the size of us. So we know that Canada's testing regime has been good. ट्रूडो का कहना था कि जब तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हो जाती, तब तक हालात मामूल पर नहीं आएंगे। Researchers across Canada and around the world are working hard on this. It could take as little as 6 months. More likely it'll take a year or a year and a half, maybe even longer, but I know the best minds are working on that. So we will, once we're through this first phase, be able to get back to something that is more normal, but we will not get back to the normal that we had before, at least until we have developed a vaccine for the virus. ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। महकमा सेहत हुकाम की जानिब से कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से मुतवक्का एदाद व शुमार जारी कर दिए गए हैं, जबकि ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में रहने जैसे इक़दाम से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वफाकी महकमा सेहत के हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि 16 अप्रैल तक कनाडा में कोरोना वायरस से तकरीबन 32,000 और 500 से 700 के दरमियान अमवात हो सकती हैं, जबकि इस वबा से कहीं भी 11,000 से 22,000 अमवात हो सकती हैं। ताहम इस पर काबू पाने के लिए सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। महकमा सेहत हुक्काम की जानिब से कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से मुतवक्का अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं, जबकि ये कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन में रहने जैसे इकदाम से इस वबा पर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एतराफ़ किया है कि उन इक़दामात को जारी रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि वायरस की पहली लहर मौसम गर्मा तक जारी रह सकती है। हुक्काम का कहना है कि कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कनाडा की चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर थ्रेसा टॉम का कहना है कि मॉडल नामुकम्मल है, लेकिन इससे कोरोना वायरस की सूरत हाल और फैलाव को समझने में मदद मिलेगी, जबकि महकमा सेहत टेस्टिंग को मजीद बेहतर करने और लैब की इस्तेदाद कार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स
और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। ओंटारियो फूड टर्मिनल की जानिब से इंफ्रारेड थर्मामीटर गन्स से हर आने वाले का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जबकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले अफराद का दाखिला ममनू है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के सबसे बड़े फूड टर्मिनल की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अहम इकदाम किए गए हैं। ओंटारियो फूड टर्मिनल की जानिब से इंफ्रारेड थर्मामीटर गन से हर आने वाले का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जबकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले अफराद का दाखिला ममनू है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड टर्मिनल पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं, जहां गुज़िश्ता माह एक मुलाजिम में कोरोना वायरस का शुबा जाहिर किया गया था। टोरंटो होलसेल प्रोड्यूस एसोसिएशन के हुक्काम की जानिब से कहा गया है कि टर्मिनल पर मुलाजमीन और ख़रीदारों के लिए मुख्तलिफ जोन्स तश्कील दिए गए हैं ताकि जिस्मानी फासले को बरकरार रखा जा सके। ओंटारियो फूड टर्मिनल पर गैर मुल्की मसनूआत आती हैं, जबकि ये टर्मिनल सालाना 2 बिलियन पाउंड तक मसनूआत कनाडा भर में फराहम करता है। हुक्काम इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि मसनूआत बिल्कुल महफूज रहें। जब मसनूआत तकसीम के लिए आएंगी तो उन्हें कॉटन्स में वसूल किया जाएगा और उन्हीं कॉटनों में भेज दिया जाएगा ताकि हकीकत में कोई भी जिस्मानी तौर पर किसी भी मसनूआत को हाथ न लगाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। क्यूबेक में बेरोजगारी की शरह 3.6% इजाफे के बाद 8.1% हो गई, जो मुल्क का सबसे बड़ा इजाफा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे क्वेबेक में एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता माह 264,000 अफराद मुलाजमतों से हाथ धो बैठे, जिससे सूबे की बेरोजगारी की शरह 8% से ज़्यादा है। स्टैटिक कनाडा की माहाना लेबर फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली मौशी सरगर्मी और मुलाजमतों में अचानक कमी का करीब तरीन मुवाजना 1998 के बर्फानी तूफान से किया जा सकता है, जिसने क्वेबेक और ओंटारियो को मुतासिर किया था। पिछले महीने में कनाडा में 1 मिलियन से ज़्यादा मुलाजमतें ख़त्म हुई। माहिरीन इक़्तिसादियात तवक्को कर रहे थे कि ये तादाद 50,000 तक जा सकती है, जो रिकॉर्ड में मुलाजमत से महरूम होने के लिए पहले ही बदतरीन महीना रहा होगा। क्वेबेक में बेरोजगारी की शरह 3.6% इजाफे के बाद 8.1% हो गई, जो मुल्क का सबसे बड़ा इजाफा है। इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया, जहां शरह 2.2% इजाफे के बाद 7.2% हो गई। ओंटारियो में ये शरह 2.1% इजाफे के बाद 7.6% हो गई। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए क्यूबेक के प्रीमियर का कहना था कि अगले चंद दिनों में सूबे में कोविड-19 की शरह उरूज पर आ जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक के प्रीमियर की जानिब से कहा गया है कि काम पर वापस आने वाले कम उम्र अफराद के लिए सेहत के खतरात महदूद हैं, क्योंकि इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के सबब इंतकाल करने वाले तमाम क्यूबिकर 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। अगर नौजवान कारकुन ख़ास तौर पर सूबे के अहम तामीराती शोबे में काम करने वाले अपने वालिदैन और दादा दादी से दूर रह सकते हैं तो फिर हम कुछ शोबों को दोबारा खोलना शुरू कर सकते हैं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि कब से शटडाउन में नरमी की जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लिगो का कहना था कि अगले चंद दिनों में सूबे में कोविड-19 की शरह उरूज पर आ जाएगी। क्वेबेक के प्रीमियर और सूबे के सेहत आमा के डायरेक्टर की जानिब से कहा गया है कि हमारी तरजीह है कि सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव और हलाकतों को कम किया जाए। सूबे की मेडिकल टीम मैशियत के हर शोबे मुख्तलिफ इलाकों का तरबियती वार जायजा लेगी। प्रीमियर का कहना था कि जहाँ लोग 2 मीटर का फासला रख सकते हैं वहाँ कारोबार खोलने पर तवज्जो देंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आखिरी इतलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले मजमूई मरीजों की तादाद 21,000 के करीब पहुँच गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 65 अफराद हलाक हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 530 हो गई है।
आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुतासिर होने वाले मजमूई मरीजों की तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई है। महकमा सेहत हुक्काम ने ऐलान किया है कि कोरोना के इलाज के लिए लेबॉर्ट्रीज में तहकीकात जारी हैं। जिन लोगों पर कोरोना हमला आवर हुआ उन लोगों में इस बीमारी से लड़ने के लिए प्लाज्मा तैयार हो चुका है, जिसे लेकर बीमार इंसान के जिस्म में दाखिल करके मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। सूबा ओंटारियो में 483 नए केसेस सामने आने के बाद मजमूई केसेस की तादाद 5,800 से तजावुज कर गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 200 है। सूबे के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने कहा है कि सब नाकाबिले बर्दाश्त है। ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना है कि सूबे में कम अज कम 13,000 टेस्ट रोजाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो हर इस शख्स का टेस्ट चाहते हैं जो किसी भी वजह से अस्पताल का रुख करे। क्वेबेक में कोरोना केसेस की तादाद 11,000 हो गई है, जबकि मजीद 41 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद सूबे में हलाक होने वालों की तादाद 216 तक पहुंच गई है। मॉन्ट्रियल में मुतासरीन की तादाद 5,300 हो गई है। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में 50 अफराद हलाक जबकि 1,370 मुतासिर हैं। अल्बर्टा में 32 अफराद हलाक जबकि 1450 से ज़ायद मुतासिर हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17,000 हो गई है, जबकि 4,68,895 अफराद वायरस से मुतासिर हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर ने मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के सिलसिले में अब तक अमरीका में 2 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। अमरीकी अफवाज 12 आर्जी अस्पताल बना रही है। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 16,697 हो गई है, जबकि 4,68,895 अफराद वायरस से मुतासिर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एयरलाइंस का कारोबार बचाने के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। कोरोना वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक भी हौसला अफजा इत्तलात आ रही हैं। अमेरिका के पास दुनिया के बेहतरीन हेल्थ वर्कर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तेल की पैदावार से मुतालिक बताया कि तेल को महफूज करने के लिए उनकी सऊदी अरब और रूस से बात हुई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और रूस बहुत ज़्यादा तेल पैदा कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में तेल फरोख्त नहीं हो रहा। इस सिलसिले में रूस के सदर और सऊदी फरमारवा से बात हुई है। मिलियन ऑफ बैरल तेल महफूज करने के लिए नए मकामात बना रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17,000 हो गई है, जबकि 4,68,895 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद कम होने लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 200 मरीज अस्पतालों में दाखिल किए गए। गवर्नर कोमो कहते हैं कि रफ्तार यही रही तो जल्द अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। रियासत में अब तक 8,000 के करीब अफराद हलाक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के किंग फहद अस्पताल में VIPs के लिए 500 बिस्तर तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और अस्पताल के डॉक्टर्स को हाई अलर्ट का पैगाम दे दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि सऊदी शाही खानदान के तकरीबन 150 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं और गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर कोरोना का शिकार होकर इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के किंग फहद ने अस्पताल में VIPs के लिए 500 बिस्तर तैयार करने के अहकाम जारी कर दिए हैं और अस्पताल के डॉक्टर्स को हाई अलर्ट का पैगाम दे दिया गया है। अखबार के मुताबिक सऊदी फरमानरवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वायरस से बचाव के लिए तन्हाई इख्तियार कर ली है। सऊदी अरब में कोरोना से 2,932 अफराद मुतासिर हैं और अब तक 41 अफराद का इंतकाल हुआ है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के 11,55,640 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 49,137 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 95,785 अफराद हलाक हो चुके हैं। 16,07,595 अफराद अब तक वायरस से मुतासिर हुए हैं।
दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस के 11,55,640 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 49,137 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 17,000 हो गई है, जबकि 4,68,895 अफराद वायरस से मुतासर हैं। इटली में 18,269, स्पेन में 15,447, फ्रांस में 12,210, बरतानिया में 7,978, नीदरलैंड में 2,396, जर्मनी में 2,607, बेल्जियम में 2,523, चीन में 3,336 और ईरान में 4,110 अफराद अब तक कोरोना वायरस से हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 4,601 हो गई है, जबकि इस वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो चुकी है। दुनिया भर में किसी भी शहर में कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में कोरोना मरीजों की तादाद 1,59,000 से तजावुज कर गई है। जुमेरात को न्यूयॉर्क में मजीद 800 अफराद हलाक हुए हैं। रियासत के गवर्नर एंड्रियो कोमो का कहना है कि समाजी फासले पर जैसे इकदामात से अस्पताल में दाखिल होने की शरह में मुसलसल कमी वाक़ई हुई है। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड से बाहर आ गए हैं। तर्जुमान डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बोरिस जॉनसन मुकम्मल सेहतियाब होने तक अस्पताल में ही रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।